Present and few more errors of refraction. Number one is the aphakia. What is aphakia? Condition where crystalline length is absent from its normal position. Normally, the lens is present in our eyes. If this crystalline lens is not present in its normal position, the condition is known as aphakia. Phakic means eye with this crystalline lens in place. Phakic. Aphakia means eye without lens. Aphakia is a condition of acquired hypermetropia. Acquired eye hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया होता है जहाँ पे हमने पढ़ा है, लेकिन aphakia में when the lens is absent from its position, this condition becomes an acquired type of eye hypermetropia. जैसे congenital hypermetropia होता है, इसी तरह ये acquired type of eye hypermetropia. This is an aphakic eye. The lens is absent from its position. There is a gap seen at 1 o'clock in the iris. This is the peripheral iridectomy done. How aphakia is produced? Lens अपनी जगह से कैसे गायब हो जाता है? How aphakia is produced? Number one is by operation. If we operate the eye, as for example in extracapsular cataract extraction, in intracapsular cataract extraction, and in phacoemulsification, we remove the lens, and if we do not implant the intraocular lens, then the condition becomes an aphakic condition. So by operation we can produce aphakia. And number two is how we can produce aphakia? By trauma. Usually contusion. चोट लगती है आंख में, कोई जोर से मुक्का लगा है, contusion, blunt injuries of high velocity, they lead to dislocation of the lens into the vitreous. वो लेंस को डिसलोकेट कर देती है, जोर से कोई मुक्का लगे, कोई भी ब्लंट इंजरी लगे, so that leads to aphakia. Another type by which aphakia is produced is by couching. This is an old type of cataract surgery in which the lens is pushed into the vitreous with a needle. एक needle आँख के अंदर डाल के कैटरेक्टस लेंस को पुश कर देते हैं नीचे, वो विट्रियस में चला जाता है. ये बहुत ओल्ड एज का कैटरेक्ट सर्जरी का प्रोसीजर है, काउचिंग. And lastly, the lens may be absent congenitally. So absence of lens congenitally leads to aphakic eye. Optical changes in aphakic eye. आंख में अगर लेंस नहीं है तो क्या ऑप्टिकल चेंजेस हो सकती हैं, क्या होंगे? नंबर वन इज द एक्वायर्ड हाई हाइपरमेट्रोपिया. Normal dioptric power of the eye is 58 to 60 diopters, plus 58 to 60 diopters. ये पूरी आंख ये dioptric power है. इसमें से कार्निया की पावर होती है plus 43 diopter to plus 44 diopter, और लेंस की dioptric पावर होती है plus 15 diopter to plus 18 diopter. अगर ये लेंस बीच में से निकल जाए तो जाहिर है ये 18 डायोप्टर्स की पावर आंख की निकल जाती है. So eye becomes hypermetropic. Absence of lens leads to hypermetropic eye.
Acquired astigmatism. Contraction of the surgical scar after cataract extraction leads to flattening of vertical meridian of cornea, thus causing astigmatism. एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं या इंट्रा कैप्सुलर तो बड़ा इंसिजन देते हैं 12 o'clock की साइड पर कॉर्निया पे लिम्बस पर. सो इसमें से पूरा लेंस निकालते हैं. सो वी नीड्स एटलीस्ट 10 to 11 मिलीमीटर ऑफ इंसिजन. इस इंसिजन को जब हम बंद करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तो ये स्कार बनता है यहाँ. That scar leads to fibrosis. Fibrosis की वजह से जो vertical meridian है वो flatten हो जाता है और इस flattening की वजह से कॉर्निया गोल नहीं रहता है and that leads to astigmatism. And this astigmatism is against the rule. जो with the rule astigmatism होता है वो vertical meridian उसमें ज़्यादा curved होता है. इसमें flat हो जाता है due to fibrosis of the scar of the incision site. Loss of accommodation. एफेकिया में accommodation खत्म हो जाती है कि लेंस ही नहीं है तो accommodation क्या होनी है. जो accommodation होती है यानी आँख का जो पावर चेंज होती है, this is due to contraction of the ciliary muscles, relaxation of the suspensory ligaments and increase in the curvature of the lens. जब lens ही नहीं है, then in aphakia there is loss of accommodation. In aphakia, parallel rays focus at 31 millimeter behind the cornea instead of 23 millimeter in phakic eye. जो normal eye है उसमें parallel rays रेटिना पे फोकस होती हैं और कॉर्निया से रेटिना का फासला 23 मिलीमीटर होता है. सो पैरेलल रेज दे फोकस ऑन 23 मिलीमीटर एंड इन एफेकिया ये 23 मिलीमीटर की बजाय फोकस होती है 31 मिलीमीटर पर, यानी आँख के पीछे जाके फोकस होती है क्योंकि उनको कन्वर्ज करने के लिए आँख के अंदर लेंस मौजूद ही नहीं है. In aphakia, retinal image is 25 to 30% larger than normal. Aphakia के अंदर जो इमेज बनता है वो 25 to 30% नॉर्मल आई से ज्यादा, यानी एक चीज जो नॉर्मल आई देखती है एफेकिया में उससे 30% वो भी चीज बड़ी नजर आती है. Objects appear red or bluish due to unabsorbed infrared or ultraviolet rays. Normally, infrared और ultraviolet rays ये जो हमें नजर आती हैं वो होते हैं बिग वायलेट से लेकर रेड तक. रेड से आगे फिर इंफ्रारेड रेज हैं और वायलेट से दूसरी तरफ अल्ट्रावायलेट रेज हैं. ये अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज they are not normally seen by our normal eyes. These infrared and ultraviolet rays are absorbed by normal lens. When the normal lens is absent, so these rays are not absorbed and the things we see they appear as reddish or bluish due to unabsorbed infrared or ultraviolet rays. Signs of aphakia. Corneoscleral scar mark at upper limbus. अगर ऑपरेशन हुआ है तो आपको मेलोकोलाज साइड पर आपको कार्नियोस्क्लेरल इंसिजन का स्कार नजर आएगा. साइन जो होते हैं जो आपको आपने आंख के अंदर देखनी है, ये चीजें देखते हैं. There is deep anterior chamber. क्योंकि लेंस पीछे से निकल गया है तो आइरिस थोड़ा पीछे चली जाती है और उसकी वजह से there is deep anterior chamber. Peripheral iridectomy may be seen. जैसे पहली पिक्चर में देखा है तो पहले इंट्राकैप्सुलर में तो लाजमी पेरिफेरल आयरिडेक्टमी करते थे और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में भी समटाइम पेरिफेरल आयरिडेक्टमी की हो सकती है. पेरिफेरी से
आयरिस को काट देते हैं, that is called as peripheral iridectomy। और साइन एफेकिया में ये होते हैं कि जेट ब्लैक प्यूपल, प्यूपल को हम नॉर्मल देखते हैं तो जेट ब्लैक प्यूपल, साइंस ऑफ एफेकिया। Another sign of aphakia is tremulousness of iris। आयरिस ऐसे हिलती नजर आती है, आपको ट्रेमर करती नजर आती है, इसको कहते हैं आयराइडोडोनिसिस। आयराइडोडोनिसिस ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट, पीछे लेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो आयरिस को सपोर्ट ना होने की वजह से आयरिस में ट्रेमर्स आ जाते हैं, ट्रेमुलसनेस आ जाती है, आयराइडोडोनिसिस। परकिंजी इमेजेस थर्ड एंड फोर्थ आर एब्सेंट। ये परकिंजी इमेजेस होते हैं, किसी भी चीज के इमेजेस नजर आते हैं फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। कॉर्निया के जो परकिंजी इमेजेस कॉर्निया से नजर आते हैं वो फर्स्ट और सेकंड होते हैं। लेंस की एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस से जो इमेजेस नजर आते हैं वो थर्ड एंड फोर्थ इमेज। जब लेंथ ही नहीं है तो ये परकिंजी इमेजेस भी नजर नहीं आते। In pseudophakia, shining reflex is seen through pupil। अगर एफेकिया नहीं है, सूडोफेकिया है, तो फिर आंख प्यूपल के अंदर आप लाइट डालते हैं तो आपको लेंस से शाइनिंग रिफ्लेक्स नजर आएगी, लेकिन सूडो एफेकिया में ये शाइनिंग रिफ्लेक्स नहीं नजर आती। सिम्टम्स ऑफ एफेकिया, किसी शख्स में लेंथ नहीं है, आई एफेक्टिक है, तो पेशेंट को क्या मसला होगा, क्या सिम्टम होंगे, क्या कंप्लेंट्स होंगे। नंबर 1 इज मार्क्ड डिमनेस ऑफ विजन, क्योंकि लेंथ नहीं है चीजें नजर नहीं आएगी क्लियरली आपको। मार्क्ड डिमनेस, विजन बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट काउंटिंग फिंगर तक चली जाती है, क्योंकि हाई हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। फोकसिंग जो है वो आंख के पीछे चली जाती है, so there is marked dimness of vision। Number 2 is visual acuity for distances, counting fingers, दूर से चीजें नजर नहीं आती, काउंटिंग फिंगर ही नजर आती है, दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आती। So visual acuity is very much reduced। Difficult reading, infected patient बगैर एन के या बगैर हेल्प के पढ़ नहीं सकता, ये फेकिया से ही कैन नॉट रीड। ब्लूइश टिंट सी, पेशेंट कहता है मुझे नीली नीली चीजें नजर आती है, नीली नीली सारी चीजें नीली नीली नजर आती हैं ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेस, सॉल्व नहीं होती। तो दीज आर सिम्टम्स इन एफेकिया। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एफेकिया? अगर आंख के अंदर से लेंस निकल गया है किसी वजह से, चोट की वजह से या ऑपरेशन की वजह से, तो आप उसको नजर नहीं आ रहा, तो हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना? ट्रीटमेंट इज नंबर 1 विद स्पेक्टिकल लेंसेज, ऐनक लगाते हैं नंबर चेक करके, आमतौर पर +10 डायोप्टर की ऐनक लगती है, कम ज्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस refractive error of the patient। Spectacles are advised after 6 weeks of operation। अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर या इंट्रा कैप्सुलर ऑपरेशन किया तो 6 हफ्तों के बाद आप उसको आप ऐनक एडवाइस करते हैं ताकि वो कॉर्नियोस्क्लेरल इंसिजन जो वो हील कर जाए। प्रिस्क्राइब स्फेरिकल लेंसेज, we prescribe spherical lenses for distance almost +10 to +12 तक, डिपेंड करता है कितनी रिफ्लेक्टिव एरर पहले थी पेशेंट की। अगर पहले ई मेट्रोप था तो उसको स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस +10 +10 नंबर का लगेगा दूर के लिए। द लेंथ फॉर नियर इज यूजुअली +13 डायोप्टर का, तो नजदीक पढ़ने के लिए चूंकि अकोमोडेशन नहीं है बिल्कुल, तो 10 के बजाय रीडिंग के लिए 13 नंबर की ऐनक लगती है। Convex cylindrical lens about +2 diopter at 180 डिग्री, ये स्कार की वजह से जो अस्टिग्मेटिज्म बन जाता है अगेंस्ट द रूल, तो उसके लिए हम अब ऐड करते हैं +2 का सिलेंडर एट 180 डिग्री। दिस इज फॉर द स्पेक्टिकल लेंसेज। बच्चे को कंजेनिटल कैटरेक्ट था, ऑपरेशन करके
लेंथ निकाल दिया, both eyes are aphakic. Now the child is wearing aphakic spectacles. An old man operated previously when the intraocular lenses were not available, so the patient is wearing aphakic glasses. अब एफेकिया में ऐनक तो लगा देते हैं, इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? ऐनक का फायदा ये है कि ये सस्ती हैं, हर जगह से मिल जाती हैं और ओल्ड पीपल जो है उनको ऐनक को हैंडल करना इजी होता है, जब मर्जी उतार ले, जब मर्जी लगा ले. सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्टिकल्स. अब ऐनक के डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेक्टिकल्स: रेटिनल इमेज बिगर देन नॉर्मल. जो चीजें पेशेंट को नजर आती हैं वो 30% बड़ी नजर आती है. अब चीज एक नॉर्मल है, वो आपको बड़ी मोटी नजर आए तो आपको जरा मुश्किल होगी ना देखने में. बंदा कोई चीज पकड़ता है तो चीज एक्चुअली 1 इंच बड़ी है, आपको वो बड़ी नजर आती है तो आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हाथ आपका पहले उस चीज से पकड़ने से पहले उसको पकड़ने की कोशिश करता है. तो इसमें बड़ी मुश्किल होती है पेशेंट्स को. तो कोई चीज छोटी है, नजर बड़ी आ रही है, तो जब वो पकड़ता है तो उसका हाथ पीछे ही होता है कि चीज जो है ना वो अभी आगे होती है. स्फेरिकल एब्रेशंस हो जाती हैं स्पेक्टिकल से, और खासकर ये पिन कुशन इफेक्ट होता है. ये मोटे शीशे लगते हैं ऐनक के, इस वजह से ये पिन कुशन, ये राइट साइड पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, पिन कुशन इफेक्ट होता है, यानी कि ये किनारों पे पिन्ने लगाई हुई हैं खींच के, तो वो जो नॉर्मल स्क्वायर है वो इस तरह की तस्वीर नजर आती है. पिन कुशन इफेक्ट, पिन कुशन डिस्टॉर्शन इमेजेस, इस तरह की चीजें. जो स्क्वायर है वो उसको सीधी लाइन नहीं नजर आती, टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है. फिर ऐनक के साथ क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाती हैं. जो पेरिफेरी है ग्लासेस की, लेंस की, उसमें से मुख्तलिफ रंगों की चीजें नजर आती हैं, क्रोमेटिक एब्रेशंस. देन डिसएडवांटेज ऑफ द स्पेक्टिकल्स है जैक इन द बॉक्स फिनोमेना. जैक इन द बॉक्स फिनोमेना, ये रिंग्स स्कोटोमा होता है और ये पेरिफेरी से ऐसे होता है, कुछ चीजें एकदम से नजर आना शुरू हो जाती हैं, एकदम से डिसअपीयर हो जाती है. Sudden disappearance and reappearance of the objects is known as Jack in the box phenomena. This is the ring scotoma by the edge of the thick lens. This is chromatic aberration. जो मोटा लेंस है 10 नंबर का, उसके पेरिफेरी से जो रेज जा रही हैं वो आगे मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती हैं. जैसे वेब वायर है ना, एक तरफ रेड है दूसरी तरफ वो, ये यानी कि वाइट की बजाय वो चेंज हो जाती हैं मुख्तलिफ कलर्स, जिसे नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन. ऐनक के साथ पेरिफेरल विजुअल फील्ड कम हो जाता है, यानी सेंट्रल फील्ड नजर आती है, साइडों से चीजें कम नजर आती हैं, तो पेरिफेरल विजुअल फील्ड कम हो जाता है. ये एफएके ग्लासेस के साथ डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन एंड ओरिएंटेशन. ये चीजें चूंकि बड़ी हैं, वो बड़ी चीज को पकड़ने के लिए जब हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको एग्जैक्ट ओरिएंटेशन नहीं होती कि चीज कहाँ पड़ी है. चीज चूंकि बड़ी नजर आ रही है तो वो उसको सही ओरिएंटेशन नहीं होती, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता सही. ऐनक का मोटे शीशे होते हैं तो फिजिकल इनकन्वीनियंस होती है पेशेंट को. भारी ऐनक होती है, नाक पे निशान पड़ जाता है तो लगानी मुश्किल होती है. तो ये स्पेक्टिकल्स की एक डिसएडवांटेजेस है. एंड कॉस्मेटिक डिफिकल्टी, वो मोटी सी ऐनक लगी हुई चेहरे पे अच्छी नहीं लगती. ऐनक नहीं लगानी तो फिर आप एफएके का इलाज कर सकते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज से. कॉन्टेक्ट लेंसेज का क्या एडवांटेज है? These are alternative to spectacles. ऐनक नहीं को लगाना चाहता तो कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकता है. फायदा इसका यह है कि मिनिमल रेटिनल इमेज डिस्पैरिटी. ऐनक के साथ इमेज 30 गुना 30% बड़ा नजर आता है, लेंसेज के साथ सिर्फ 6% बड़ा नजर आएगा इमेज एफएके का इमेज. ये इसका एडवांटेज है. यूजफुल टू यूनिलैटरल एफएके, अगर एक साइड पर
नॉर्मल है आँख, किसी चोट की वजह से दूसरी आँख में एफेकिया हो गया है, तो ऐनक लगाना मुश्किल हो जाता है। आप फिर कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकती हैं एफेक्टाई में। और कॉन्टेक्ट लेंसेज कॉस्मेटिकली गुड नजर आते हैं कि वो ऐनक लगी हुई नजर नहीं आती। कॉन्टेक्ट लेंस, अब कॉन्टेक्ट लेंस के डिसएडवांटेजेस, फायदे नहीं है तो नुकसान भी हो सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस कॉर्नियल एपिथेलियम के ऊपर लग गया जाके, अब कॉर्नियल एपिथेलियल एडिमा हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। ये सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं एक्सटेंडेड वियर कॉन्टेक्ट लेंसेज और कुछ को कहते हैं डेली वियर कॉन्टेक्ट लेंसेज। इनमें कॉन्टेक्ट लेंस में वाटर कंटेंट होता है। जितना किसी कॉन्टेक्ट लेंस में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, उस वाटर कंटेंट की वजह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो उसके अंदर से डिफ्यूज होकर कॉर्नियल एपिथेलियम को मिल जाती है। तो अगर कॉन्टेक्ट लेंस अच्छा नहीं है तो उसमें से ऑक्सीजन कॉर्निया को नहीं मिलती। That leads to hypoxia and hypoxia leads to epithelial corneal epithelial edema। अब लेंस की वजह से एपिथेलियल एरोजन हो सकती है, किसी किसी जगह से एपिथेलियम एरोड हो सकती है, और पंक्टेड क्रेटिक एरोजन, कॉर्नियल एरोजन हो सकती है। कॉन्टेक्ट लेंस का डिसएडवांटेज ये भी है कि इनटॉलरेंस ड्यू टू एलर्जी, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करती, एलर्जी करते हैं, तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते कॉन्टेक्ट लेंस वियर, क्योंकि फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, फॉरेन बॉडी आँख के ऊपर लगी हुई है, तो पेशेंट फील फॉरेन बॉडी सेंसेशन ड्यू टू कॉन्टेक्ट लेंस। लेंस ब्रेक हो सकता है या गुम हो सकता है, ये उसका डिसएडवांटेज है, और ये ग्लासेस से ज्यादा महंगे भी हैं। सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज। ये एफेकिया का हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्ट लेंसेज से कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन हो जाती है, क्योंकि हर वक्त इरिटेशन काज करते हैं, दैट लीड्स टू कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन फ्रॉम द लिम्बस, एंड ये आल्सो लीड्स टू कैपिलरी कंजंक्टिविटिस। ये जो लिड के टॉर्सल कंजंक्टिवा है वो भी साथ रब करता है कॉन्टेक्ट लेंस के साथ, दैट लीड्स टू कैपिलरी कंजंक्टिविटिस ऑफ टॉर्सल कंजंक्टिवा। एफिकिया है तो अब इसका और इलाज ये है कि आप यू कैन इम्प्लांट एन इंट्राकुलर लेंस, इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। Then the condition becomes from aphakia to pseudophakia. Different types of intraocular lenses available है, जिनमें से posterior chamber intraocular lenses है, scleral fixation वाले intraocular lens हैं, और anterior chamber intraocular lenses हैं। ये aphakia में या आप anterior chamber में लेंस डाल सकते हैं, या sclera के साथ फिक्स कर सकते हैं, या posterior chamber में intraocular lens डाल सकते हैं। So intraocular lens implantation is the best treatment of aphakia. इंट्राकुलर लेंस है, मुख्तलिफ किस्म के इंट्राकुलर लेंस हैं। ये प्रोलीन हैप्टिक के साथ इंट्राकुलर लेंस है, ये मल्टीफोकल इंट्राकुलर लेंस है, मल्टीफोकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राकुलर लेंसेज। PCIOL एफेकिया में आप ये posterior chamber में intraocular lens implant किया हुआ है। Pupil is dilated, when the pupil will become constricted, so you cannot then, आप फिर देख नहीं सकते, तो आप पेशेंट को अच्छा नजर आएगा इसमें। ये स्क्लीरा के साथ फिक्स कर देते हैं। अगर posterior capsule of the lens absent हो, इंट्राकैप्सुलर हुआ हो, तो फिर आप posterior chamber में इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीछे posterior कैप्सूल की सपोर्ट नहीं होती। इस सूरत में आपने जो कैटरेक्ट पढ़ा आपको पता ही होगा, तो स्क्लीरा के साथ ये हैप्टिक जो स्क्लीरा के साथ ये फिक्सेट करते हैं, इसको कहते हैं स्क्लेरल फिक्सेशन। या फिर एंटीरियर चैम्बर में आइरिस के आगे इंट्राकुलर लेंस डाल देते हैं, जैसे ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है।
प्यूपल से आगे आयरिस के ऊपर एंटीरियर चैम्बर में इंट्राकुलर लेंस लगा हुआ है। इंट्राकुलर लेंसेज के क्या एडवांटेजेस है? मिनिमम इमेज साइज डिस्पैरिटी, इसमें जो दोनों आंखों का जो इमेज साइज है नॉर्मल से 2 से 3% बड़ा है, तो ये बड़ा इनसिग्निफिकेंट है। दोनों इमेज साइज एक जैसे ही नजर आते हैं, तो इसमें आपको बाइनोकुलर विजन मिलती है, दोनों आंखों से देखते हैं, दोनों चीजें एक जैसी ही नजर आती हैं। पेरिफेरल विजन जो है इंट्राकुलर लेंस की वजह से नॉर्मल हो जाती है। कॉस्मेटिक डिसएडवांटेज है कि ना कोई ऐनक लगी हुई है ना कॉन्टेक्ट लेंस लगा हुआ है, तो पेशेंट को कोई इनकन्वीनियंस भी नहीं होती। कॉस्मेटिकली भी पेशेंट बिकम्स हैप्पी। नो फिजिकल इनकन्वीनियंस। एडवांटेजेस ऑफ इंट्राकुलर लेंसेज। प्रॉब्लम्स विद इंट्राकुलर, हर चीज के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो इंट्राकुलर लेंसेज के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? कॉर्नियल एंडोथेलियल डैमेज लीडिंग टू स्ट्राइट केराटोपैथी। जब आप आंखें पर लेंस डालते हैं तो द सर्जन कैन डैमेज द कॉर्नियल एंडोथेलियम, और अगर आपने डैमेज कर दिया दैट लीड्स टू स्ट्राइट केराटोपैथी। अब दूसरा ये है कि सब लक्सेशन ऑफ इंट्राकुलर लेंस लीडिंग टू सनसेट सिंड्रोम, या जो लेंस आपने डाला है वो अपनी जगह से हिल गया है, सब लक्सेट कर गया है, नीचे की तरफ चला गया है, नीचे की तरफ चला जाए तो उसको कहते हैं सनसेट सिंड्रोम, या लेंस पूरे का पूरा ही पीछे विट्रियस में डिसलोकेट हो गया। तो ये इंट्राकुलर लेंसेज के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो बिफोर डूइंग इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांट अच्छी तरह असेसमेंट करते हैं कि आपने क्या प्रोसीजर करना है। ये सबलक्सेशन ऑफ द इंट्राकुलर लेंस, आंख में लेंस डाला है लेकिन वो थोड़ा नीचे सिंक कर गया है, जिसको कहते हैं सनसेट सिंड्रोम। ये है स्ट्राइट केराटोपैथी। कॉर्निया को देख रहे हैं तो सारी हेजी हुई है। स्ट्राइट केराटोपैथी, कॉम्प्लिकेशन of intraocular implantation if you damage the corneal epithelium during operation। फिर यह कि पिupillary block ग्लाकोमा हो सकता है लेंस डालने से। सिस्टाइड मैकुलोपैथी हो सकती है, लीड्स टू impaired vision, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा and post-operative iridocyclitis. These are problems with intraocular lens implantation। मैकुलर एडिमा फंगस पिक्चर ऐसे नजर आएगी, तीर के निशानों से पता चल रहा है कि यहाँ पर एडिमेटस है मैकुलर एरिया। अगर आप ऐसे करें तो ये सिस्टाइड मैकुलर एडिमा की पिक्चर ऐसे नजर आती है फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी के साथ। अच्छे थे ना तो दूसरा नहीं आया, चैट नहीं चैट नहीं, लेक्चर दूसरा ये हो गया। हाँ ये हो गया ना, अब दूसरा करना। वो ओपन नहीं किया आपने? नहीं ओपन नहीं किया। चलो अच्छा बोले अच्छा। ये वाला था ना? हाँ ये हाँ ये ठीक है। Another refractive error is the presbyopia. What is presbyopia? An anomaly of accommodation due to aging. ये accommodation की anomaly है presbyopia।
नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन रिसीड्स बियॉन्ड 33 सेंटीमीटर। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं तो वो ये 30 सेंटीमीटर तक, एक फुट के फासले पे हमें नजर आती चीजें, लेकिन प्रेसबायोपिया जब होता है एज की वजह से तो ये 33 सेंटीमीटर से चीजें दूर करके नजर आती हैं। This is actually not an error of refraction, but we have to discuss it with error of refraction. तो तस्वीर में देख रहे हैं कि जो रेज जा रही हैं वो फोकस हो रही हैं रेटिना के पीछे नॉर्मल एज एन हाइपरमेट्रोपिया। तो प्रेसबायोपिया में नियर पॉइंट जो 33 सेंटीमीटर पर होता है वो रिसीड कर जाता है, दूर कर जाता है, दूर करके देखना पड़ता है। सो नियर पॉइंट रिसीड्स अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ प्रेसबायोपिया? ये आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़े जो लोग हैं 40 प्लस के, वो ऐनक लगा के पढ़ते हैं। वो ऐनक लगा के पढ़ने का मतलब ये है कि उनकी अकोमोडेशन वीक हो गई है और वो अब ऐनक लगा के उनको पढ़ना पड़ता है, प्लस लेंसेज के लगाने पड़ते हैं। दिस इज प्रेसबायोपिया एंड एजिंग प्रोसेस एट और अबव 40 इयर्स। 40 साल के बाद एजिंग प्रोसेस होता है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ अकोमोडेशन, हार्डनिंग ऑफ द लेंस थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिक्रीजिंग इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस एंड वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। होता यह है कि अकोमोडेशन वीक हो जाती है इसलिए कि लेंस हार्ड हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, सिलियरी मसल वीक हो जाते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट इतने लैक्स नहीं होते, लेंस की जो पावर है वो चेंज नहीं होती। What is accommodation? A normal person sees clearly near and distant objects. जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको दूर से भी चीजें ठीक नजर आती हैं, करीब से भी ठीक नजर आती हैं, जो नॉर्मल है, जो इमेट्रिक है, जिनको ऐनक लगी हुई है, वो तो और बात है। Rays from distance are parallel and focus on retina. Rays from near are divergent. जो दूर से चीजें आप देख रहे हैं वहां से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल होती हैं और वो रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं। ई मेट्रोप जो नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल होता है, जो करीब से रेज होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं। डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करने के लिए या तो आप प्लस लेंस लगाएंगे या आंख के अंदर जो लेंस है वो अकोमोडेट करेगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। इस तस्वीर में आप देख रहे हो, ऊपर वाली तस्वीर में दूर से चीजें रेटिना के ऊपर जाके फोकस होती और नीचे वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो आंख के अंदर लेंस है वो मोटा हो गया है, उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई है, उसका कर्वेचर ज्यादा हो गया है। तो नजदीक की चीज देखने के लिए हमारी आंख के अंदर जो लेंस है वो उसकी पावर ज्यादा हो जाती है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल, relaxation of suspensory ligaments and increasing curvature of the crystalline lens. To make diverging rays focus on retina, focusing power of eye be increased. अब जो करीब से चीजें नजर आ रही हैं, करीब से जो रेज हैं वो होती हैं डाइवर्जिंग रेज, जो दूर से रेज आती हैं वो होती हैं पैरेलल रेज। तो नजदीक वाली जैसे नजदीक पड़ते हैं तो ये रेज डाइवर्जिंग होती हैं। इन डाइवर्जिंग रेज को रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए आंख की फोकसिंग पावर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ये इंक्रीज कैसे होता है? सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल आपने रेटिना में पढ़ा, ये सर्कुलर मसल होते हैं, ये वो कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है जिनके साथ लेंस वहां ठहरा हुआ है वो रिलैक्स कर जाते हैं। तो लेंस जो कि इलास्टिक होता है तो उसका कर्वेचर ज्यादा हो जाता है एंड दैट इंक्रीज्ड कर्वेचर टू इंक्रीज्ड पावर ऑफ द फोकसिंग आई। अकोमोडेशन में आई बॉल, दोनों आई बॉल जो है ना वो कन्वर्ज भी करती हैं, यानी दोनों आंखें करीब भी आ जाती हैं। कन्वर्जेंस एंड पिपलरी कंस्ट्रिक्शन, पिपल भी थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करते हैं अकोमोडेशन में।
इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे रिलैक्स्ड है और राइट साइड पे अकोमोडेटेड आई है। तो इसमें लेंस आयरिस को देखेंगे, सिलरी बॉडी को देखेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को देखेंगे तो राइट साइड पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो गए हैं, ढीले हो गए हैं और सिलरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो ऐसे ज्यादा मोटे हो गए। तो इसके वजह से जो आंख का क्रिस्टलाइन लेंथ है उसकी कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, पावर ज्यादा हो जाती है, तो हमें करीब की चीजें भी नजर आती हैं। प्रेसबायोपिया में ये चीजें ग्रेजुअली कम हो जाती हैं। अदर काजेज ऑफ अर्ली प्रेसबायोपिया, अगर हाइपरमेट्रोपिया पहले से पेशेंट को है तो उसको जल्दी प्रेसबायोपिया हो जाता है। प्रीमेच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ द लेंस, जनरल डेबिलिटी काजिंग वीकनेस ऑफ द सिलियरी मसल्स, बंदा कमजोर हो गया, सारे मसल वीक हो गए तो सिलियरी मसल भी वीक हो गए तो वो इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते जिसकी वजह से अकोमोडेशन नहीं होती तो अर्ली प्रेसबायोपिया हो जाता है। एक्सेसिव क्लोज वर्क, बहुत ज्यादा जो काम नजदीक करने वाले उनको भी जल्दी प्रेसबायोपिया हो जाता है। नॉर्मल नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर और रेटिना पे इमेज फोकस नहीं हो रहा हाइपरमेट्रोपिक आई में, तो इसको इसमें जल्दी प्रेसबायोपिया हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिक आई अगर हो उसमें प्रेसबायोपिया जल्दी हो जाता है। एक्सेसिव क्लोज वर्क लीड्स टू अर्ली प्रेसबायोपिया। नजदीक ये ज्यादा सारा दिन 6-6 घंटे काम करते हैं नजदीक, उनको प्रेसबायोपिया जल्दी होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स ऑफ प्रेसबायोपिया, सिम्टम्स ऑफ प्रेसबायोपिया, ब्लरिंग ऑफ विजन व्हाइल रीडिंग और नियर पर नजदीक का काम करते वक्त या रीडिंग करते वक्त चीजें क्लियर नजर नहीं आती, ब्लरिंग हो जाती है। विजन इंप्रूव्स इफ बुक इज हेल्ड अवे, अगर ऐसे दूर करके किताब को देखें तो फिर जरा अच्छा नजर आता है। पर्सन्स डूइंग मोर नियर वर्क फील सिम्टम्स अर्ली, जैसे सुनार हैं या क्लर्क हैं जो सारा दिन नजदीक का काम करते हैं वो उनको जल्दी डिफिकल्टी फील होती है। सिम्टम्स अर्ली इन हाइपरमेट्रोपिया, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया प्लस नंबर की आने लगती है उसको पहले से दूर के लिए उसको जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं प्रेसबायोपिया के। इन मायोपिया प्रेसबायोपिया इज डिलेड, मायोपिक पेशेंट्स जिनमें माइनस नंबर की आने लगी होती है उनमें प्रेसबायोपिया डिलेड होता है। ब्लर्ड इमेज ऑफ मोबाइल, मोबाइल देखता है पेशेंट 40 ईयर से ऊपर तो उसको नजदीक से नजर नहीं आता, चीजें एनक लगा के नजर आएगा। ऐसे किताब दूर करके देखे तो उसको अच्छा नजर आता है, एनक लगा के देखेगा तो फिर उसको करीब से अच्छा नजर आएगा। जैसे प्रेसबायोपिया का सिम्टम है कि दूर करके अच्छा नजर आता है। साइंस ऑफ प्रेसबायोपिया क्या है? नियर विजन चार्ट से देखते हैं, नियर विजन जैसे दूर की नजर चेक करते हैं स्नेलन चार्ट से, इसी तरह नियर विजन के लिए जिगर चार्ट्स होते हैं जिससे नियर विजन चेक करते हैं कि कितनी किसी बंदे की नियर विजन है। या नियर पॉइंट देखते हैं, RF रूलर होता है उससे नियर पॉइंट देखते हैं जो कि नॉर्मली 33 सेंटीमीटर होता है, तो प्रेसबायोपिया में ये नियर पॉइंट रिसीड कर जाता है। ये डिस्टेंट विजन चेक करने स्नेलन विजन चार्ट है। ये नजदीक देखने के लिए ये जिगर विजन चार्ट्स होते हैं, ऊपर मोटे लफ्ज है नीचे ऐसा ऐसा बारीक होते जाते हैं, तो देखते हैं कि कौन सी लाइन तक पेशेंट पढ़ सकता है नियर विजन चेक करने के लिए। अनदर लॉग बार चार्ट होता है, ये भी नियर विजन चेक करने के लिए होता है, जिसकी देखते हैं कि कौन सी लाइन तक उसको अच्छा नजर आता है। ये RF रूल है, ये नियर पॉइंट देखने के लिए होता है। RAF कहते हैं रॉयल आर्मी, रॉयल एयर फोर्स, तो ये एक चकोर सा टारगेट होता है, उसके मुख्तलिफ साइडों पे मुख्तलिफ चीजें लिखी होती है। ये स्केल के ऊपर आगे पीछे हो सकता है, तो देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर से पेशेंट को नजर आता है, ठीक तो उससे पता चलता है नियर पॉइंट कितना है। ऐसे रखते हैं और ये उसको आगे पीछे करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि पेशेंट का नियर पॉइंट कितना है। नॉर्मली नियर पॉइंट इज 30 to 33 सेंटीमीटर। प्रेसबायोपिया में ये नियर पॉइंट ये दूर चला जाता है। ट्रीटमेंट क्या करना प्रेसबायोपिया का? कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंसेज,
Suitable convex spherical lenses are prescribed according to age. जितनी एज ज्यादा होती जाती है ये प्रेस्बियोपिया ज्यादा होता जाता है तो ज्यादा नंबर की एनक लगानी पड़ती है. Power of convex lens is added to distance correction in spectacles. अगर बंदा पहले से दूर की एनक लगा रहा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये ऐड करते हैं उसमें. अगर तो प्लस नंबर का पहले अगर दूर की +1 की एनक लगा रहा है तो नजदीक का +1 उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये +2 की हो जाएगी. अगर दूर की माइनस लगा रहा है तो उसमें +1 ऐड करेंगे तो वो नहीं बगैर एनक के ही नजर आएगी. Spherical convex lenses they converge the rays focal point पे. ये हम इसमें convex lenses एडवाइज करते हैं क्योंकि फोकसिंग पावर आई की कम हो गई है तो ये कॉन्वेक्स लेंसेज एड करते हैं फोकसिंग में नियर चीजों को देखने में. प्रेस्बियोपिक ग्लासेस लगा के बंदा नजदीक देखता है. ऐड भी कर सकते हैं. नंबर अकॉर्डिंग टू एज वेरी करता है. 40 इयर्स की एज पर आपको 0.5 डायोप्टर ऐड करते हैं. 45 की एज पे आपको 1 डायोप्टर का प्रेस्बियोपिक ग्लासेस देने पड़ते हैं. 50 इयर्स पे जाके 1.5 डायोप्टर की एनक लगानी पड़ती है और 55 पे जाके 55 की एज पर जाकर आपको +2 नंबर की एनक लगानी पड़ती है पढ़ने के लिए. एंड एट द एज ऑफ 60 इयर्स +2.5 डायोप्टर की एनक लगानी पड़ती है फॉर प्रेस्बियोपिया. ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस्बियोपिया की और है इसको कहते हैं कंडक्टिव रिफ्रैक्टिव केराटोप्लास्टी करते हैं. ये करते हैं हीट इन द कॉर्नियल स्ट्रोमा एट 8 to 10 points in a circle at 6 millimeter from the center of the cornea to bulging of central cornea. ये आपको ऐसे करते हैं कि कॉर्निया के ऊपर ना 6 मिलीमीटर के फासले पर सेंटर से कॉर्निया को हीट करते हैं तो यहाँ से हीटिंग से थोड़ा फाइब्रोसिस होता है, ठीक कंट्रैक्शन होती है तो सेंटर वाला जो कॉर्निया है वो बाहर की तरफ बल्ज करता है तो कॉर्निया का जो कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से कॉर्निया की पावर ज्यादा हो जाती है तो पढ़ने में आसानी हो जाती है. इसको कहते हैं कंडक्टिव केराटोप्लास्टी. सीके anisometropia. Another refractive error is the anisometropia. Anisometropia is an optical condition of eye where diffraction of the two eyes is different in variety and degree. ये ऑप्टिकल कंडीशन है जिसमें दोनों आंखों का नंबर एनक का मुख्तलिफ होता है. एक आंख में 1 नंबर की एनक लग रही है, दूसरी आंख में 3 नंबर की एनक लग रही है तो ये दोनों आंखों का फर्क जो है रिफ्रैक्शन दोनों आंखों की मुख्तलिफ होने को कहते हैं एनिसोमेट्रोपिया. एनिसोमेट्रोपिया में देखते हैं एक आंख में वो चीज ऑब्जेक्ट फोकस हो रही है आंख के सेंटर में यानी कि मायोपिया है, दूसरी आंख वही चीज देख रही है उसमें रेटिना पे फोकस हो रहा है तो दोनों आंखों का फर्क है तो इसको कहते हैं एनिसोमेट्रोपिया. टाइप्स ऑफ एनिसोमेट्रोपिया क्या है? वन आई इज इमेट्रोपिक, अदर आई इज एमेट्रोपिक. एक आंख बिल्कुल सही है, दूसरी में फर्क है. क्या बोथ आईज एमेट्रोपिक या दोनों आंखों में नुक्स है या मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है? या तो एक आंख नॉर्मल है दूसरी में फर्क है, या ये कि दोनों में फर्क है या मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, या ये कि दोनों ही एबनॉर्मल है, एक में मायोपिया है दूसरे में हाइपरमेट्रोपिया है. सो दीज आर क्लिनिकल टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रोपिया. बोथ आईज आर हाइपरमेट्रोपिक और बोथ आईज आर मायोपिक. दोनों खराब है लेकिन ये दोनों में या दोनों मायोपिक हो सकती हैं या दोनों हाइपरमेट्रोपिक हो सकती है बट वन आई इज हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव एरर देन द अदर. दोनों मायोपिक हो सकती हैं या दोनों हाइपरमेट्रोपिक होते हैं लेकिन दोनों का नंबर मुख्तलिफ होगा. या मिक्स्ड एनिसोमेट्रोपिया है कि वन आई इज मायोपिक and the other is hypermetropic. दोनों एबनॉर्मल है लेकिन एक में मायोपिक
रिफ्रैक्शन है, दूसरे में हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्शन है। दोनों आंखों के फर्क को कहते हैं एन आइसोमेट्रोपिया। सिम्टम क्या होंगे? आई स्ट्रेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, पढ़ने में मुश्किल, देखने में मुश्किल, थक जाती आंखें। और दिस इज आई स्ट्रेन इज ड्यू टू एन आइसोकोनिया, डिफरेंस इन रेटिनल इमेज साइज। एक में माइनस नंबर की ऐनक लगती है, दूसरी आंख में प्लस नंबर का है, तो दोनों का इमेज साइज जो है वो डिफरेंट होगा। जो माइनस के साथ है उसमें चीजें छोटी नजर आती हैं और प्लस लेंस के साथ बड़ी नजर आती हैं, इमेज साइज मुख्तलिफ हो जाते हैं। और दोनों इमेज साइज को, छोटे और बड़े को फ्यूज करने के लिए दिमाग जो है उनको कोशिश करता है दोनों इमेज को फ्यूज करने के लिए। अगर ज्यादा फर्क हो तो फ्यूज करना भी मुश्किल हो जाता है, डिप्लोपिया हो जाता है। लेकिन अगर कम फर्क है तो फिर वो ये जो एफर्ट है फ्यूज करने की दोनों इमेजेस को एक देखने की, उसकी वजह से आई स्ट्रेन भी होता है और हेडेक भी होता है। अगर दोनों का फर्क बहुत ज्यादा हो, एक आंख में एक देखिए दूसरी नॉर्मल है, तो आपको दोनों चीजें नजर आएंगी। एनाइसोमेट्रोपिया के साइंस क्या होंगे? अगर थोड़ी डिग्री का है, यानी दोनों आंखों का फर्क बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको बाइनोकुलर विजन नजर आएगी, बाइनोकुलर विजन होगी। लेकिन अगर ज्यादा फर्क है, दोनों एक में 1 नंबर है, दूसरे में 5 नंबर है, तो फिर जो हायर डिग्री का अगर एनाइसोमेट्रोपिया है, दैट लीड्स टू यूनिआकुलर विजन। एक आंख से नजर आता है, दूसरी जिसमें ज्यादा फर्क है वो एम्ब्लियोपिक हो जाती है और डाइवर्ज कर जाती है। अगर ज्यादा डिग्री का एनाइसोमेट्रोपिया हो, देन वन आई, एक बाइनोकुलर विजन नहीं होती, एक आंख ही देखती है सही, दूसरी आंख पे फोकस नहीं करती, देन इट बिकम्स एम्ब्लियोपिक, एंड व्हेन द एम्ब्लियोपिया इज डेंस देन इट डाइवर्जेस, डाइवर्जेंट स्क्विंट हो जाता है। फिर ये साइने का अल्टरनेट विजन। हाइपरमेट्रोपिक आई सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मायोपिक आई यूज्ड टू नियर विजन। एक आंख में अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो वो दूर की चीजें देख लेगी, दूसरी आंख अगर मायोपिया है तो वो नजदीक की आंखें देख लेगी। तो एक आंख दूर देखती है और एक आंख नजदीक देखती है, ड्यू टू वन आई हाइपरमेट्रोपिक एंड द अदर मायोपिक, मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया की वजह से। इसको कहते हैं अल्टरनेट विजन। कॉजेज ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया की क्या वजह क्या हो सकती है? Congenital, of course, congenital difference of refractive power of two eyes, as for example in keratoconus, keratoglobus. Congenitally कार्निया मुख्तलिफ है, एक keratoconus हो गया, इसमें नॉर्मल है, एक में। तो ये congenital difference दोनों आंखों में हो सकता है, या कार्निया का कर्वेचर मुख्तलिफ हो सकता है, या congenitally axial length दोनों आंखों में मुख्तलिफ हो सकती है। Congenital difference in axial length of two eyes. एनाइसोमेट्रोपिया आपने करते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करें, तो अगर दोनों पीपल्स को देखें तो इनमें क्योंकि दोनों में रिफ्रैक्टिव एरर डिफरेंट है, एनाइसोमेट्रोपिया है, तो दोनों का जो पीपल का जो रिफ्लेक्स है आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। एनाइसोमेट्रोपिया में दोनों आईज में फंडस रिफ्लेक्स डिफरेंट नजर आएगा, उससे पता चल जाता है। जैसे दोनों में नजर आ रहा है, यानी एक आंख मायोपिया है, दूसरी हाइपरमेट्रोपिया है, तो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से ये इस तरह भी नजर आएगा। ये साइन है। एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया, ये तो तक कंजेनिटल डिफरेंस हो सकता है कॉर्निया में या एक्सियल लेंस में। एक्वायर्ड में होता है एज एन यूनिलैटरल, एक आंख में सफेद मोती का ऑपरेशन कर दिया, एक आंख एक हो गई, दूसरी नॉर्मल है, तो जाहिर है ये दोनों आंखों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। तो दिस इज एन एक्वायर्ड टाइप ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया। वन आई यूमेट्रोपिक एंड अदर इज स्यूडोपिक, एक आंख नॉर्मल है, दूसरी में आपने इंट्राओकुलर लेंस डाल दिया है, लेकिन लेंस आपने सही पावर का नहीं डाला, बायोमेट्री सही नहीं की, तो इसको कहते हैं बहुत ज्यादा चेंज, उस नंबर आपने या कम डाल दिया या ज्यादा डाल दिया, तो एक आंख सही है, दूसरी भी सही होनी चाहिए थी अगर सही नंबर का इंट्राओकुलर लेंस लगता। लेकिन अगर आपने रॉन्ग पावर का इंट्राओकुलर लेंस डाल दिया, दैट लीड्स टू एन आइसोमेट्रोपिया, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्शन मुख्तलिफ हो जाएगी। हाउ टू डायग्नोज एनाइसोमेट्रोपिया? ऑफ कोर्स यू विल चेक द विजुअल एकुटी एंड डू द रिफ्रैक्शन, रेटिनोस्कोपी एंड ऑटोरिफ्रैक्टोमेट्री।
रिफ्रैक्शन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में एक में कितना नंबर लगता है, दूसरी में कितना नंबर लगता है। ये जैसे वो आपने यहाँ एक डब्बा देखा हुआ जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लेंस बड़े होते हैं हमारे आउटडोर में, लेकिन ये लेंसेज की बजाय ये एक ऑपरेटस होता है जिसमें सारे लेंसेज इसी ऑपरेटस के अंदर ही लगे होते हैं। इसी में हम वो चेंज कर देते हैं, तो रिफ्रैक्शन चेक करते हैं कितना नंबर एक आंख को लगता है, दूसरी को कितना लगता है, या रेटिनोस्कोपी करते हैं कि एक में कितनी रिफ्रैक्शन है, दूसरे में कितनी रिफ्रैक्शन है, दोनों मायोप है या एक मायोप है दूसरा हाइपरमेट्रोप है, या दोनों में कितनी रिफ्रैक्टिव एरर है। या ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से आपको बहुत इजी हो जाता है, दोनों आइज का आपको नंबर फौरन पता चल जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया, एनाइसोमेट्रोपिया है, एक आंख का नंबर मुख्तलिफ है दूसरे का मुख्तलिफ है, तो आपको इलाज क्या करना है? ऑफ कोर्स स्पेक्टिकल लेंसेज, प्रेस्क्राइब सूटेबल lenses for up to 2 to 3 diopter difference in refraction। एक का आंख का नंबर 2 है, का 3 है, तो आप उसको ऐनक लगा देते हैं 2 नंबर की और 3 नंबर की। अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो तो फिर ऐनक से आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ऐनक से नहीं करना तो फिर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं। जैसे एक तरफ एफेकिया है तो आप उसको कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, या ज्यादा फर्क है तो यू कैन यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज इन एनाइसोमेट्रोपिया। और कॉर्नियल सर्जरी भी कर सकते हैं रेडियल कैरोटोमी की शक्ल में। स्पेक्टिकल लेंसेज, मुख्तलिफ स्पेक्टिकल लेंसेज जितना भी नंबर एक आंख में लगता है दूसरी आंख में लगता है, 4 नंबर का फर्क हो तो आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर दोनों आइज का ऐनक का नंबर 4 नंबर से ज्यादा हो तो फिर ये टॉलरेट नहीं कर सकते हम ऐनक लगाना, फिर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं। ये रेडियल कैरोटोमी, अगर एक आंख मायोपिक है और एक नॉर्मल है तो फिर आप रेडियल कैरोटोमी करके जो मायोपिक आई है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं रेडियल कैरोटोमी से। ये इलाज है एक आंख के मायोपिक होने का। या एग्जामिनर लेजर कर सकते हैं, फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेक्टरमी है, या लेसिक कर सकते हैं। एक आंख अगर ज्यादा आपकी मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है तो यू कैन डू सर्जरी भी कर सकते हैं, या अगर एक साइड पर एफिकिया है देन यू कैन इम्प्लांट इंट्राऑक्यूलर लेंस। लेफ्ट साइड पे है पीआरके, राइट साइड पे है लेसिक। पीआरके में कॉर्निया एपिथेलियम रिमूव करके लेजर एग्जामिनर लेजर से कॉर्निया का कर्वेचर चेंज कर लेते हैं। और लेसिक भी ये करते हैं कि कॉर्निया का कॉर्नियल फ्लैप आपको राइट साइड में नजर आता है जिसके पिंकिश से किनारे नजर आ रहे हैं। ये इस फ्लैप को पीछे करके तो आप लेजर लगाते हैं एग्जामिनर लेजर, और इस फ्लैप को दोबारा कॉर्निया के ऊपर ही लगा देते हैं तो जल्दी हीलिंग हो जाती है। सेकेंडरी इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन इन एफेकिया, अगर एक आंख एफेकिया है तो आप उसमें इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। VNN and isometropia, difference in reflection, अगर दोनों आंखों का 0.25 डायोप्टर का फर्क हो, that lead to 0.5% difference in retinal image size. अगर greater the difference in refraction, greater will be the difference in retinal image size. दोनों आंखों का नंबर अगर मुख्तलिफ होगा तो retinal image size भी मुख्तलिफ हो जाता है। A difference of refraction of 4 diopters causes about 7% image size difference, maximum tolerable। अगर 4 से ज्यादा फर्क हो दोनों आइज की ऐनक के नंबर का तो फिर इमेज साइज मुख्तलिफ हो जाता है दोनों का, तो 4 नंबर से ज्यादा टॉलरेट करना ऐनक लगा के मुश्किल हो जाता है। ए बिगर डिफरेंस काजेस डिप्लोपिया, अगर 4 नंबर से या 6 नंबर का दोनों आंखों का डिफरेंस है तो अगर आप ऐनक लगाते हैं तो फिर पेशेंट डिप्लोपिया फील करता है। तो जितना ज्यादा फर्क होगा, जितना कम फर्क होगा उतना टॉलरेशन बेहतर होती है, जितना ज्यादा होता जाता है तो दोनों आइज का ऐनक से टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।